Hello everyone. So today we are going to study about cell. Cell, I have already made a video on cell, how can we classify cells into prokaryote cells and eukaryotic cells, and what are the organelles included in the cell. I have already made a video about it, but today we are going to study in detail about prokaryotes versus eukaryotes. How are these two cells differ, with each other. These are some points we are going to discuss today. So what is cell? First of all, cell is the basic unit of life. It's a structural and functional unit of life which is very important for a body to function. It's a very vital component of a body. It's a very simplest, smallest unit that can live on its own, and it makes up all, like, it makes up the living organism, like all living organisms for that matter. Be it a prokaryote, be it a simple organism, be it a unicellular organism, be it a multicellular organism, complex organism, cell is the basic unit of life for all organisms and tissues of the body. Okay. So as I said, there are two major types of cells. One is prokaryotic cells and second is eukaryotic cells. Prokaryotic, if we go by the name, it is a little simpler in structure. It's not complex in nature. Prokaryotic cells are not very complex. Eukaryotic cells, on the other hand, are little complex, little on the complex side, or maybe not little, they are on the complex side. Both of these cells definitely differ in the structure, their complexity, as I said, and functions. Okay, observance as well, appearance as well. So prokaryotic cells. First, we will study about prokaryotic cells, then we will understand about eukaryotic cells, and we will compare both of these type of cells. Now, prokaryotic cells are those cells which lack a true nucleus and membrane-bound organelles. In the previous video about cell, I'll mention the link in the description box. In the previous video of cell, I have, like, gave a detailed overview of each organelle and the function of each organelle in the cell. So prokaryotic cells are those cells who does not comprise of nucleus, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जिनको नहीं पता है, गो वॉच दैट वीडियो. जिन्हें पता है, या गोल्जी एपेरेटस, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तरीके से ये हमारी न्यूक्लियस हो गया. इस तरीके से ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है. एज आई सेड, दे आर सिंपलर इन नेचर. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता उनका स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल्स के लिए बैक्टीरिया इज वन एग्जाम्पल, सच एज आर्काई बैक्टीरिया इज one such example of prokaryotic cells. What are the key features of prokaryotic cells? They are devoid of nucleus. They do not comprise of nucleus. Nucleus नहीं होता है, true nucleus नहीं होता है basically. उनके पास genetic composition होती है definitely, because genetic composition is required in all organism. वो हमारा एक genetic makeup होता है, तो वो होता है, but it is scattered in the cell. It is not like limited to a organelle such as nucleus, as in the eukaryotic cells. वैसा नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस उनके पास नहीं होता है. सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोइड, मैंने बताया आपको, डीएनए जो है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो स्कैटर्ड होता है सेल के अंदर. तो वो पूरा सेल बॉडी के अंदर स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. सो जहाँ पे भी वो डीएनए स्कैटर्ड होता है, हम उस पार्ट को न्यूक्लियोइड बोलते हैं. तो न्यूक्लियोइड के अंदर इट जस्ट स्कैटर्स. स्मॉल साइज होती है, बहुत मैंने बताया सिंपल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल साइज होती है, छोटे छोटे साइज होती है. 1 to 10 माइक्रोमीटर is enough for these are cells. सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है. एंड व्हेन दे रिप्रोड्यूस दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन. ओके, बाइनरी फिजन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं, दैट आई विल कवर इन दी सेपरेट वीडियो. बट
just to understand कि कैसे डिवाइड करते हैं. They divide by binary fission. They reproduce by this reproduce asexually. As I said, उनका genetic makeup उतना complex नहीं है, उनका structure उतना complex नहीं है. They do not go for sexual reproduction. They divide by binary fission, which is a method of asexual reproduction. Okay. Moving ahead, eukaryotic cells. What is eukaryotic cells? So the cells which have true nucleus and membrane bound organelles such as Golgi apparatus, nucleus, mitochondria and so others. So जिन भी सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है जहां पे जेनेटिक मेकअप होगा उस पर्टिकुलर सेल का और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. इट इज वेरी सिंपल बाय द डेफिनेशन. एग्जाम्पल्स के लिए एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्ट्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स और भी एग्जाम्पल्स इसमें आ सकते हैं. तो उस तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. की फीचर्स क्या हैं यूकैरियोटिक सेल्स के? दे कंप्राइज ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है. ट्रू न्यूक्लियस होने के साथ साथ न्यूक्लियर की एनवेलप भी होती है. न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. तो न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी होती है. लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं. जो इस यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर सीधे सीधे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ज्यादातर एकदम लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. दे आर लार्जर इन साइज में बड़े होते हैं. 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज ऑब्जर्व किया गया है यूकैरियोटिक सेल्स का. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. एज आई सेड, अभी इतने सारे मशीनरी जैसे जैसे बहुत सारी चीजें आने लग जाती है वैसे वैसे मशीनरी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है सेल की, राइट. सो अभी यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं, ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, एवरीथिंग इज देयर. सो जो सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. एंड these cells, the eukaryotic cells, divide by mitosis or meiosis. Cells कैसे divide करते हैं? Mitosis और meiosis. So see, mitosis and meiosis is a form of cell division that also I'll cover in a separate video. But जो cells होते हैं वो mitosis और meiosis के through divide करते हैं because they are complex in structure. Functionality भी इनकी complex होती है. So I have included this table of comparison table basically. So here we are going to study each characteristic of prokaryotic cell and eukaryotic cell simultaneously so that we understand it better. So first is cell size. Cell size मैंने आपको बताया prokaryotic cell का cell size 0.2 to 2 माइक्रोमीटर आप मान सकते हो. बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं. They are smaller in size. Eukaryotic cell on the other hand are larger in size. They are 10 to 100 micrometers. उसमें रेंज करते हैं. न्यूक्लियस बताया मैंने आपको एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. न्यूक्लियस नहीं होता या फिर आप बोल सकते हो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. जेनेटिक मेकअप होता है विच इज स्कैटर्ड इन द न्यूक्लियोइड. यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं बट यूकैरियोटिक सेल में सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है. वेदर इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेदर इट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वेदर इट इज राइबोसोम्स, whether it is nucleus, whether it is mitochondria, vacuoles आप बोल सकते हो. बहुत सारा जितने भी सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. फ्लैजेला. व्हाट आर फ्लैजेला? फ्लैजेला एक्चुअली सेल के बाहर माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है. एकदम छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं सेल के बाहर बाउंड्री पे, सेल के और मेम्ब्रेन पे एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं. उसे हम फ्लैजेला बोलते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स. 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फ्लैजेला के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. यूकैरियोटिक सेल्स में कॉम्प्लेक्स होता है. फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला स्ट्रक्चर एकदम माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सिलेंड्रिकल शेप्ड के. वो फ्लैजेला का काम करते हैं इन यूकैरियोटिक सेल. सेल वॉल के लिए अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है एंड यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल जो है वो सिंपलर होता है. नाउ व्हाई इज दिस डिफरेंस? सेल वॉल
इसीलिए केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, बिकॉज दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है। इसलिए सेल वॉल का उतना ज्यादा फंक्शन अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन का ज्यादा फंक्शन होता है इन यूकैरियोटिक सेल्स, बिकॉज जो भी इन एंड आउट है मॉलिक्यूल्स का वो सब सेल मेम्ब्रेन देखती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल वॉल होता है, बिकॉज वो ही आउटर मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल की, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता साइटोप्लाज्म का, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन होता है, मतलब सेल की जो है बॉडी होती है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में एकदम स्मॉल स्मॉल राइबोसोम्स देखे जाते हैं, एकदम स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, and they are actually the protein building blocks of the cell. राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, सो स्मॉलर होते हैं साइज में इधर, और यूकैरियोटिक सेल में दे आर लार्ज इन साइज। सेल डिवीजन मैंने आपको बताया, बाइनरी फिजन इज अ मेथड उसके थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड होते हैं, सेल डिवाइड होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होता है, देन मियोसिस होता है। सो उसमें से क्रोमोसोम्स नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रोमोसोम्स नंबर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक होता है, एंड दैट इज बट नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू, बट एक क्रोमोसोम नंबर होता है। यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम नंबर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो मियोसिस, बिकॉज इसमें बाइनरी फिजन से सेल डिवाइड हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। डीएनए का ट्रांसफर जो होता है वो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से होता है बैक्टीरिया के अंदर। कॉन्जुगेशन इज अ प्रोसेस जो कि बैक्टीरिया यूज करता है टू ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन व्हिच हैपेंस आफ्टर माइटोसिस। ओके, so that is about sexual reproduction. Next, what are the similarities between eukaryotic and prokaryotic and eukaryotic cells? So see, both are having plasma membrane, दोनों के पास plasma membrane है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी है और यूकैरियोटिक सेल के पास भी है। जो प्लाज्मा है, जो साइटोस्केलेटन है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन रहती है, तो दोनों के पास है। साइटोप्लाज्म दोनों के पास है। एक ऐसा हो सकता है सिंपलर है बट कॉम्प्लेक्स है एक का, बट दोनों के पास है। राइबोसोम्स दोनों के पास है, एक के स्मॉलर है, एक के लार्जर है, बट दोनों के पास है। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल दोनों का डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी, यूकैरियोटिक सेल्स में भी। सो दैट इज वन मोर सिमिलैरिटी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं ऑफ ईच टाइप। प्रोकैरियोट्स के बहुत ही वाइडली यूज्ड एग्जाम्पल्स हैं ई कोलाई, एशरीशिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो बहुत ही एविडेंट एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोट्स के। यूकैरियोट्स के हम खुद एग्जाम्पल हैं होमोसेपियंस, जिया मीज जिसे हम बोलते हैं, दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट। एंड सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, इट्स अ yeast, right? So that is also an example of eukaryotic cell or eukaryote. What are the applications and importance of prokaryotes or eukaryotes? See, prokaryotes इंसुलिन प्रोडक्शन के काम आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज आता है इंसुलिन प्रोडक्शन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बिकॉज दे आर बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के साइकिल में हेल्प करते हैं, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। माइक्रोबायोम स्टडीज में काम आता है, जो भी माइक्रोब्स की स्टडी करनी होती है, बैक्टीरिया की स्टडी करनी होती है। आर्काई बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस में रहता है। आर्काई बैक्टीरिया जो है दे डू नॉट लिव इन नॉर्मल कंडीशंस, बहुत ही अलग कंडीशंस में रहता है, बहुत ही सॉल्टी वाटर एंड हॉट टेम्परेचर, मतलब उसमें कुछ वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं। सो उस तरीके से वो स्टडीज जब करनी होती है तब यूज आते हैं। उनके सेल के बारे में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी करनी होती है तो वो काम आते हैं। यूकैरियोट्स मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी रिसर्च में काम आते हैं। जेनेटिक रिसर्च हुई, मेडिकल रिसर्च हुई, उसमें काम आते हैं। एडवांस टिश्यू स्पेशलाइजेशन, टिश्यू के बारे में स्टडी करना हो तो भी यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो काम आते हैं। सो जस्ट अ क्विक रिकैप, प्रोकैरियोट्स के बारे में क्या समझा, दैट दे आर सिंपल सेल्स, सिंपल स्ट्रक्चर विदाउट न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस।
ट्रू न्यूक्लियस फॉर दैट मैटर। यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज के साथ, बट दे बोथ आर वेरी essential and vital for life and scientific advancement, because जो साइकिल है जो लाइफ साइकिल है वो दोनों के होने के वजह से इजीली चल पाती है. सो both are essential to life and scientific advancement. Okay, so finally I just have one question for you all. So which of these has membrane bound organelles? आपको एक ऑप्शन चुनना है. मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स. कौन सी ऑर्गेनिज्म इसमें से हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यानी कि गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स, वो सब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो वो सब किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, दोनों में प्रेजेंट होता है, या किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता? जिसे भी आंसर आता है या जिसे नहीं भी आता है, दे कैन आल्सो ट्राई. प्लीज डू कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स. यू नो उससे मुझे समझ में आएगा कि कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आया. I'll see each and everyone's responses. So yeah, so the answer is यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है सारे तरीके की. ओके, whether it is endoplasmic reticulum, whether it is ribosomes or Golgi apparatus or mitochondria, eukaryotes के पास present होती है, and they are complex in nature because of these, because of the presence of these organelles. Okay, okay, so thank you so much for tuning in. This was the video about prokaryotes and eukaryotes and how we can compare, prokaryotes and eukaryotes. I'll be back with more such videos. If you have any suggestions or doubts for this video or any particular slide for that matter, please do let me know in below in the comment section. I will definitely reply back to everybody. Also, if you want any particular choice of topic for me to explain, please do comment below in the comment section. I would be more than happy to cater you guys. So for now, thank you so much for tuning in. Bye bye, take care, and don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Okay, thank you so much. Bye bye, take care.